with the UPCM, getting these updates coming in. PM Modi speaks for a second time with the UPCM. Remember, he had already had a conversation with Yogi Adityanath a short while back, and he reviewed the developments and called for immediate support measures. But we're coming to know that there's a second conversation that the Prime Minister Modi is having with the UPCM, Yogi Adityanath. Second conversation that he is having about this stampede-like situation at the Mahakumbh. PM Modi has spoken to UPCM Yogi Adityanath about the situation at the Mahakumbh Mela and reviewed the developments and called for immediate support measures. We also told you that Union Home Minister Amit Shah had also dialed and spoken to the UPCM Yogi Adityanath. Now, rescue operations are underway after the stampede-like situation arose in Mahakumbh. And we're coming to know that several people are reported to be injured. Some of them have been taken to the hospital from the information that we have got for our viewers. This all started. This all started on the early hours of Wednesday. We came to know that a stampede-like situation arose at the Mahakumbh in Prayagraj in the early hours of Wednesday. That is today. Some people are injured. We're also coming to know that this was a special occasion. Remember, it is Mauni Amavasya. It's a very, very significant day when it comes to the Mahakumbh occasion, celebrations. When it comes to the Mahakumbh festivities, we're coming to know that Mauni Amavasya is a very important day. So over 80 to 100 million people were expected to gather at the Sangam Ghats. We're getting some more updates coming in right now, viewers, where multiple casualties were feared after a stampede-like situation has broken out at the Sangam amid the ongoing Mahakumbh, as a number of pilgrims turned up for a holy bath on Mauni Amavasya. And this is in view of this incident. The Akharas have called off their traditional Amrit Snan for Mauni Amavasya, even as devotees in large numbers have continued to take a dip at the Sangam and other ghats in the Mela area. The officials have spoken out, and some people have got injured and have been hospitalized. निकलने के लिए चाहे जाने के लिए उस टाइम वो बहुत भीड़ बढ़ गई थी। अच्छा। हाँ, उस टाइम में हमें कितनी होगी संख्या, मतलब आपके एक अंदाजे से? अब अंदाज वहाँ ये मत पूछिए कि कितनी भीड़ थी, ये नहीं पार होगी। हाँ, ये मत पूछिए कि कितनी भीड़ थी। क्या लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, ऐसा कुछ हुआ? हुआ ऐसा ही ना हुआ। हमारा परिवार का साया खुल गया, उसको पता नहीं लग रहा। हम खोज रहे थी उस टाइम, तो हम उसको बोल कि अब खत्म हो गया है। हाँ। तो आपके मिल गया आपके परिवार के? हाँ, मिल गया। अच्छा, तो चोट वोट भी आई है आपको? हाँ। कहाँ आई है, दिखाइए चोट। ये इस पर चढ़ गया था। अच्छा। उसको हटाया, वो उतना चोट नहीं है हमको। हाँ, तो कैसा उस समय, क्या भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई थी? सब ऊपर चढ़ रहा था, ढकेल रहा था एक एक ऊपर में। हाँ। हाँ। अच्छा। को लेकर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है। ये जानकारी हमें मिल रही है, और संगम में जो भी स्थितियां हैं उसकी पल पल की अपडेट ली जा रही है। बड़ी बात यही है कि प्रशासन, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। और अभी हमने जो तस्वीरें संगम से देखी है, स्थिति अभी सामान्य है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर भी आप लोग ध्यान ना दें। खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जो प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है, कई सारे डीएम हैं, कई सारे एसपी हैं, कई सारे सीओज हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। कई पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं, वो भी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आपको व्यवस्था में सहयोग करना है, और श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि आप धीरे धीरे चलते रहिए, और जहां आपको जगह मिल रही है वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। यही पवित्रता है इस मौनी अमावस्या की, कि आप प्रयागराज में हैं, इस संगम नगरी में हैं, और उसी को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर
तमाम तरह के अपडेट लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं प्रयागराज की, दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं बनारस की, काशी की, जहां अलग अलग जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में अभी ये आंकड़ा बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है और जो नंबर्स हमारे पास हैं वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप बनारस देख रहे हैं, बनारस में भी स्थिति को संभालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और ये हमारे पास जानकारी है कि वहां पर बाहरी गाड़ियां जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। यानी महाकुंभ में महास्नान जारी है और एक तरफ श्रद्धालुओं का रेला जनसमुद्र बढ़ता जा रहा है। आपको पल पल के अपडेट प्रयागराज से हम देते रहेंगे।